बचपन में जब मैं लोगों को कहती थी कि मुझे मिस इंडिया बनना है तो लोग मुझ पे हंसते थे। ये मिस इंडिया बनेगी, शक्ल देखिए अपनी। मेरा नाम मान्या सिंह है, मैं कह सकते मान्या ओम प्रकाश सिंह। BSCC Femina Miss India 2020 runner-up. She comes from an extremely humble family. To me, Manya isn't just another beauty pageant winner, but to me she is an inspiration because of her story. Daughter of an auto rickshaw driver, Manya's victory has inspired millions not just in India but across the world. Her story underlines that anyone can dream, believe and achieve. इन तालियों की गूंज भारत के हर उस घर तक जानी चाहिए जहां पर बेटियों को रोका जाता है, जहां पर बेटियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। शायद मान्या उन सबके लिए इंस्पिरेशन बन गई है। Hers is a story of hope and inspiration and success, and so much success that every Indian must hear about. A star, and a star in so many ways. If you really want to dream something, dream beyond your imagination. अगर आप खुद पे भरोसा करेंगे तो दुनिया आप पे भरोसा करेगी। लोगों ने मुझे बोला कि यू आर डस्की, यू आर शॉर्ट, यू आर थिन। लोग जो बोलते हैं उसके अपोजिट करने का, एंड देन यू नो व्हाट यू वांट। मैं अपनी बेटी पे बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। Femina Miss India, it has been empowering women since generations. It has helped them break the glass ceiling, be it in the entertainment industry, in the fashion industry, in politics, and any other profession that they take up. It has helped give a platform of equal opportunity to all the new talent of our country, irrespective of their family background, their financial status, their culture, their religion, caste, color, none of that matters. And it has been a fast track to stardom. Manya Singh, the daughter of an auto rickshawala from Uttar Pradesh. What a story. Manya is actually a premium example of what true empowerment stands for. She had to overcome a lot of odds to be one among the 3 winners that evening at Femina Miss India 2020. She's a headliner. She's a true inspiration, and actually, I salute her spirit, her ambition. Look where she is today. दी को पूरे इंडिया से इतना प्यार मिल रहा है कि ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो लोग बोलते हैं, देख मान्या सिंह का भाई आ गया, देखो मान्या सिंह का भाई आ गया। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि मैं मान्या सिंह का भाई हूँ। मान्या सिंह इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर टुडेज़ यूथ, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आई हुई है और कहाँ से कहाँ उसने स्वप्न देखा 16 साल की उम्र में कि उसको मिस इंडिया बनना है, एंड शी अचीव्ड इट। हियर नो बैकग्राउंड वर्क्स, इट इज़ ओनली द एफर्ट एंड द माइंडसेट वर्क्स विच इज़ बीइंग प्रूव्ड एंड proper time being given. She has invested her time in becoming a good model, Miss India, and that she has done it. Manya Singh, the young daughter of a man who drives rickshaw in Mumbai for a living, created history by becoming the runner-up of the VLCC Femina Miss India pageant 2020. At the young age of 14, she came all the way from a small village in Gorakhpur all the way to Mumbai through a train without any money, with the hopes to fulfill her dreams and make it big. Today, after winning the pageant, she's on the front page of every single newspaper in the country. She's the headline of every single news channel, and she's also become the biggest inspiration for our generation. I'm about to meet her right now in her Mumbai residence along with her parents to get to know her better. So, let's go.
बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप तीनों को, क्योंकि ये आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है कि घर में एक मिस इंडिया है। हम यहाँ हैं बिकॉज़ हमें पूरी जर्नी जाननी है आपकी, स्टार्टिंग से जब आप मुंबई आई। तो पहले जब मुंबई आप आई थी, आई थिंक यू वर 14 ईयर्स ओल्ड, बिफोर दैट आपकी फैमिली जब गोरखपुर में थी तो वहाँ पे आपकी लाइफ कैसी थी? वहाँ पे आप लोग का कैसा था लाइफस्टाइल? घर पे कुछ पारिवारिक विवाद हो गया था, तो हमारे चाचा लोग ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे मेंटली, तो हम इसको लेके बगल के टाउन एरिया महानगर पालिका हाटा रेंट पे इसको रहने लगे। जब कोई था नहीं, मैं भी बेरोजगार था, छोटा सा 10 बाई 10 का कमरा लिए उसी में हम लोग रहते थे। उसके बाद वहाँ भी दिक्कतें आने लगी। दिक्कतें खाने पीने की दिक्कतें तमाम हो गई। खेती बाड़ी जो है वो लोग कब्जा करके रखे थे, तो हम लोग को गेहूँ चावल कुछ भी नहीं मिलता था। उसके बाद रिश्तेदारों के यहाँ से थोड़ा थोड़ा राशन लाते थे और उसी से चलाते थे। तो मान लीजिए रिश्तेदार कितने दिन तक देगा राशन? जहाँ पैसे की कोई प्रॉब्लम होती है, लोगों का माइंड डिस्टर्ब होने लगता है ना कि क्या करूँ कि हमारे बच्चों का पेट भरे। माय अंकल एंड आंटी लेके कैसे खिलाएंगे इन लोग को, फुकट का खाते ये लोग। और मम्मी से दिन रात काम कराते थे। मम्मी रिक्वेस्ट करती थी कि मैं काम करूँगी, आप हमें बस खाने को दे दो। बिना कुछ खाए मम्मी मेरी बोलती थी कि आपको क्या चाहिए बेटा, मतलब शी यूज्ड टू आस्क मी कि मुझे ऐसा ना लगे कि मम्मी कंजूस कर रही हैं, दूसरों के मम्मी पापा अपने बच्चों को खिला रहे हैं। हाँ। तो दैट आई नो दैट शी इज जस्ट प्रिटेंडिंग एंड आई वाज लाइक नहीं मम्मी कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी मैं चाय नहीं पीती, क्या करेंगे फिर, तो चुपचाप बॉटल का पानी पीते। देयर वाज अ सिचुएशन जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ा था रिलेटिव्स के घर पे बॉम्बे में, वो गांव में। दे वर नॉट गिविंग मी फूड, गैलरी में दोस्त सुलाते थे एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक क्योंकि ये लोग ऑलरेडी इतना टेंशन में थे। इट्स लाइक बिफोर 14 आई वॉज वेरी लाइक मैं पढ़ आई वॉन्टेड टू स्टडी देन। सॉरी मुझे बोलते थे तेरा बाप घासलेट ला के देगा। गाँव में लाइट की बहुत परेशानियाँ रहती थी ना, तो शाम को जब पड़ती थी लाइट चली जाती थी तो वो मिट्टी का जो घासलेट आता है ना, वो बोतल में भर के दिया जलाते हैं, हमारे दिया उसको बोलते हैं, तो उससे थोड़ा सा उजाला होता था। तो उसी के अगर पढ़ती थी वो तो बोलते थे लोग कि नहीं दिन में पूरा दिन खेलती है तू, रात को पढ़ाई मत किया कर, मिट्टी का तेल ला के तेरा बाप देगा, तो दिया बुझा देते थे लोग। मम्मी पापा के सामने देवले की काम नहीं करते। जब ये लोग मुझे छोड़ के आ जाते थे तो सारा पोछा मरवाना, सारा चूल्हे का बर्तन धुलवाना सब करवाते थे। तो अब क्या उन लोगों ने कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट किया? Did they come around because now you're successful? They came around but now I think ऐसा इतना कुछ देख लिया कि अभी वो रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। चौदह साल की थी ये, तो वहाँ से ये निकली बॉम्बे। ये बोली मम्मी अब भी मैं अपनी फ्रेंड के घर से आ रही हूँ। अच्छा। और ये बिना मेरे से ऐसे बताई फ्रेंड के घर से, बोली ठीक है। फिर ये निकली और बॉम्बे में कुशीनगर एक्सप्रेस जो ट्रेन आती है हमारे गोरखपुर से, लेडी डब्बा में पीछे बैठ के और बॉम्बे आई। मैं सोची शाम हो गया, रात हो गई, आई नहीं, मुझे घबराहट। और जो ये फ्रेंड के साथ जाते थे वो फ्रेंड के घर भी मुझे नहीं मालूम। 14 साल की लड़की है, उनकी पता नहीं कहाँ चली गई। लोगों की तरह तरह की थिंकिंग। 14 साल की उम्र में यूपी में बड़ा मानते हैं। मैं बोली इससे अच्छा बेइज्जती तो बहुत होगी। एक्चुअली घर में बहुत झगड़ा हुआ था और मम्मी घर छोड़ के चली गई थी, तो वो मेंटल पता नहीं वो दिमाग में क्या हुआ कि शायद मम्मी ने सुसाइड कर लिया हो, शायद ये सब हो गया हो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता ना। आई लेफ्ट होम, आई डिडंट हैड एनीथिंग। मुझे नहीं पता था कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है। मैंने सिर्फ एक अंकल से पूछा था मुंबई कौन सी ट्रेन जाती है, उन्होंने बोला ये वाली ट्रेन जाती है। और मुझे मम्मी और मैं हमेशा से जो 4-5 साल की थी तो हम लोग लेडीज़ ट्रेन में ट्रैवल करते थे। तो मुझे पता था कि ट्रेन के लास्ट में लेडीज़ डब्बा होती है जहाँ पे सिर्फ औरतें बैठती हैं। तो मैं वहाँ जाके चुपचाप बैठ गई। टिकट विकेट कुछ नहीं था मेरे पास, और मेरे पास पैसे नहीं थे। वो 3 दिन का ट्रैवल था, बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं थे। फिर मैं आई मुंबई में, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी।
तो मैंने किसी अंकल से बोला तो अंकल ने मुझे 1 रुपये दिया, बोला कि अपने माँ बाप को फ़ोन करो। तो यहाँ आके मैंने फ़ोन किया कि मैं मुंबई में हूँ। तो पापा गुस्सा नहीं थे, पापा ने बोला कि बेटा ऐसे बिना बताए नहीं जाते। पहले कहती थी कभी कभी कि आप यहाँ से झगड़ा, टेंशन, हर चीज़ का परेशानी हो रहा है, हम लोग बॉम्बे ही चलते हैं और सब लोग काम करेंगे, बर्तन धोएंगे, दूसरे घर पे काम करेंगे, आप भी ऑटो रिक्शा चलाएंगे। छोटा बड़ा काम वो नहीं होता है, काम काम होता है। बॉम्बे में रूम का भाड़ा देना, कि ऑटो रिक्शा चला के घर चलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था क्योंकि जॉब कोई नहीं करता था। मुझे ये भी पूछना था कि जब एक लड़की घर से भागती है वर्सेस एक लड़का, तो लड़की के लिए बहुत अलग दुनिया होती है, ज़्यादा डेंजरस होती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है क्योंकि बहुत डेंजरस है। एक अकेली लड़की या एक टीनेज लड़की, इवन अगर माँ बाप हैं फिर भी, तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया फ्रॉम ऑल द द वल्चर्स एंड द डेंजर्स दैट सराउंड अ गर्ल इन दिस वर्ल्ड? आई न्यू दैट आई विल फेस, आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड। 14 साल की उम्र में इतनी तो मैं मैच्योर थी कि मुझे पता था कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। मैंने पढ़ा था कि आपने अपनी ज्वेलरी भी एक पॉइंट पे बेची थी एडमिशन के लिए, तो स्टार्टिंग से ही आपने बहुत सपोर्ट किया है एजुकेशन को भी, एंड मतलब जर्नी स्टार्ट ही डिफ़िकल्ट हुई। हाँ होता है। तो उसमें आप मदर का भी बहुत रोल होता है। एक पॉइंट पे जब मान्या ने अपना क्राउन आपके सर पे रख दिया था, तो मदर के दिमाग पे जो एक मेंटल स्ट्रेस आता है, ये इस पूरी जर्नी में आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस आया होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब ये बड़ी हो गई तो मुझे एडमिशन कराना था इसका, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इनके पास ऑटो रिक्शा नहीं था, दूसरे का चलाते थे। और नर्सरी और जूनियर में एडमिशन कराने लगे तो टीचर ने बोला कि ये इसके अंदर इतना दिमाग है कि आप नर्सरी जूनियर कराओगे तो फालतू टाइम वेस्ट करोगे, इसको पहली में एडमिशन कराओ। तो मैंने पूछा कि अच्छा कितना फीस, एडमिशन फीस इसका कितना है? तो उन्होंने बोला कि 4,500। तो मोटी पाइल थी, तो मैंने 5,500 में हमने बेच दिया। खुशी खुशी बेच दिया। और मुझे इतना खुशी हुआ कि चलो मेरी बेटी पढ़ने जा रही है। 3rd स्टैंडर्ड जब मैं यहाँ से कंप्लीट करके गई थी, तो उसके बाद से लेके 9th स्टैंडर्ड तक मेरे मंथली फ़ीस भी भरे थे, एडमिशन फीस नहीं भरते थे और मुझे क्लास के बाहर ही खड़ा करते थे एग्ज़ाम्स के टाइम। अरे तुम्हारे मम्मी पापा को लेके और फीस भरो, उसके बाद ही एग्ज़ाम बैठने देंगे। तो ये बोलते थे कि मम्मी टीचर स्कूल से निकाल दिया, आप एडमिशन थी, एग्ज़ाम देने नहीं देने दे रहे हैं लोग। वहाँ जाकर रिक्वेस्ट प्रिंसिपल से करती थी कि मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप इसका एग्ज़ाम फ़ीस ले लीजिए और मेरी बेटी को एग्ज़ाम देने दीजिए। वो भी तुरंत नहीं, कल देती हूँ, परसों देती हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी। तो प्रिंसिपल लोग अच्छे थे, फिर ये एग्ज़ाम देती थी। कुछ और जेवर थे, गहने गिरवी रखते थे, फिर इसको ये फीस भरती थी। ऐसे मेरी लाइफ चढ़ाव उतार बहुत सारा आया। जब स्टार्ट किया था जॉब, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि मैं बर्तन धोती हूँ। तो आप जाती कैसी थी? हाउ डिड यू मैनेज द They knew that I'm doing job and I told them कि मैं काउंटर पे रहती हूँ, लोगों के बिल पे लेती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे अलाउ भी नहीं करते थे काउंटर तक जाने का। They were not allowing कि मैं हम उनसे यही बोली कि पापा मैं काउंटर पे बैठती हूँ, बिल बनाती हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारा टाइम पास भी हो जा रहा, कुछ सीखोगे, वहाँ जाओ। लेकिन अंदर क्या ये नहीं बताती तो मैं तुरंत यहाँ से उठा ले जाता। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे ऑलमोस्ट उन लोगों ने एक कार्टन, जिसमें से 30 से 35 किलो नींबू थे और उन्होंने मुझे था कट करो। व्हेन आई केम एंड आफ्टर लाइक अ वीक और समथिंग आई गॉट अ जॉब, एंड दैट वाज जस्ट अ 6,000 का थिंग। लाइक नाउ इट्स अ बिग डील फॉर मी टिल नाउ। लाइक 6,000 भी मेरे लिए बहुत मैटर करता। दैट वाज माई फर्स्ट सैलरी। देन उसके बाद जब मैंने वो नींबू काटे, मेरे हाथ में लिटरली पूरे ऐसे, आज भी आप देखेंगे तो ये ठेले हैं मेरे हाथ में सारे। ये उसके वजह से है? हाँ, ये मतलब आई हैव डन अ लॉट इस हाथों से ना, कि ये मेरे पैर पे भी ऐसे है। तो जब नींबू काट के मेरे हाथ पूरे एकदम सूज भी गए थे, क्योंकि ये कट भी गया था हाथ में, वो बैंडेज वगैरह लगाया था मैंने। फिर उसके बाद उन लोगों ने धीरे धीरे मुझे पिज़्ज़ाज बनाना सिखा दिया, फिर उन्होंने मुझे डिश वॉशिंग में भेज दिया। देन वो मुझे कभी भी फ्रंट रो में जाने नहीं देते थे बिकॉज ऑफ माई लुक। लेकिन तुम्हें देख, हाँ, देन दे वर लाइक कि अगर तुम्हें देखेंगे तो कस्टमर आएंगे नहीं, बिकॉज आई वॉज डस्की, आई वॉज नॉट ग्रूम्ड।
तो दे वर लाइक कि आप फ्रंट डेस्क पे मत जाओ, आप अंदर ही रहो। एंड वेन एवर आई वॉज गोइंग दैट साइड कि मैं कुछ सीखूंगी जाके, वो तुरंत मुझे अंदर भेज देते थे, मुझे बाथरूम वगैरह साफ़ कराते थे। तो ये सब मैंने मम्मी को बाथरूम भी साफ किया? हाँ, मुझे बहुत शौक था इंग्लिश पढ़ने का, बहुत ज़्यादा। मैं 9th स्टैंडर्ड पे मैं 12th के बच्चों के साथ बैठती थी एंड आई लर्न ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन स्किल होता है मैंने वहीं से सीखा है कि जितना आप सुन के नहीं उतना आप ऑब्जर्व करके सीखोगे। मैं चश्मा पहना था, उन्होंने बोला कि वेयर इज़ योर बुक, मैं कि आई डोंट हैव बुक सर। अब बट मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो उन्होंने इतनी ज़ोर से चाटा मारा कि मेरा चश्मा दूर जाके गिरा और बोला कि जब माँ बाप की औकात नहीं तो स्कूल नहीं भेजते। दैट डे आई डिसाइडेड दैट I'll buy my own book and I'll make sure कि मेरे जैसे बच्चों को कभी तकलीफ ना हो। And that day I decided that I will not be something like doctor and engineer. That would be just for me. I'll be something literally कि लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। अब मुझे जानना है कि मिस इंडिया कैसे पिक्चर में आया, बिकॉज जैसे कि आपने लाइफ अभी बताई, बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ रही है, इसके बीच में इतना बड़ा ड्रीम देखना कि मिस इंडिया जो एक ताज एक लड़की के सर पे लगता है, उसमें बहुत टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंग्लिश, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, तो ये ड्रीम कब आया दिमाग में? I seriously don't know what happened. It's like that's my thing. एग्ज़ाम्स के जस्ट बाद मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया था कांदीवली वेस्ट में। वहाँ पे हमें कंटिन्यूसली 9 घंटे कॉल लेने पड़ते थे। ओके। लाइक पीपल यूज्ड टू कॉल बैक टू बैक। इंश्योरेंस कंपनी थी, बात कैसे करते वो एक ही जगह मुझे सिखा सकते हैं, वो है कॉल सेंटर। So the inspiration to work there was not money. No. It was because you wanted to learn how to talk. Yes. Because you wanted to be Miss India. Yeah. From 16 I knew that I wanted to be Miss India. I want to go on that stage. I researched a lot. I've seen the videos that how they speak. तो मैंने खुद को उस वे में ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। तब मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन करते ही मैंने रैम्प वॉक वगैरह खुद यूट्यूब पे देखा, अलीसिया मैम को ऑब्जर्व किया एंड देन सीखा। What if you did not win? Did you have like a plan B? There was no plan B. पर्सनल इंटरव्यू में जब मुझसे क्वेश्चन किया गया था, इफ़ नॉट दिस ईयर देन वो, तो कि मैम मैं जब तक नहीं बनूंगी तब तक आऊँगी। मैंने ऐसे वे में बोला कि नेक्स्ट ईयर बट आई विल कम अंटिल आई एम नॉट विनिंग, बट आई विल कम डेफिनेटली। This is not just a dream or passion for me. This is me, and which I've seen myself standing on that stage and being crowned as Miss India. I had that confidence कि भाई बनना है और मेहनत बहुत की है। I'm emotionally strong, and as well as I've kept myself that warm and humble, so that from the start I wanted to do something different. So I knew that if I want to do something different, I have to be connected to the people and be grounded. After Crown, I'll be the same. I'll be जैसे मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठती हूँ नॉर्मल कपड़े में, वैसे ही आके बैठूँगी। Just that I can be the voice of people. Because 14 साल की उम्र में अगर मेरा हाथ किसी ने पकड़ के बोला होता कि तू कहीं मत जा, मैं हूँ तेरे पापा को मैं देखता हूँ या तेरे घर वालों को देखता हूँ, तेरी मम्मी को कौन परेशान करता है, तो उस टाइम मैंने वो कदम नहीं उठाया था। बट वहाँ पे मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था। Sacrifice is good, but at a limited point. There is a line for sacrifice. There is a line for adjustment. There is a line for girl to sacrifice their dream for their father. मुझे खुद मम्मी पापा बोलते थे कि this is not our thing. Miss India is like, तूने लड़कियों को देखा है वो कितना ग्रूम करती हैं खुद को, तूने लड़कियों को देखा है, and they didn't know that I am grooming myself. अच्छा, तो सारी प्रिपरेशन अंदर ही चल रही थी because they didn't know that I am going into modeling. मेरा हील्स मेरे बैग में रहते थे। ऑडिशंस कैसे खरीदे आप? How did you manage to buy? My first heel was in
250 rupees and that was my first heel. I still have with me black color की. मुझे पता थी कि stilettos चाहिए and I didn't know उसको stilettos बोलते हैं. मुझे लगा अरे वो पेंसिल वाली हील चाहिए. जब मैं हील्स छिपा के कॉलेज से जाती थी ऑडिशन को, जब रात हो जाता तो रिटर्न आते आते झगड़ा विगड़ा सब हो जाता था. मम्मी कोने में बैठ के रोती रहती थी एंड बिकॉज ऑफ मी देन मुझे भी बहुत पड़ती थी. और फिर मुझे झूठ बोलना पड़ता था क्योंकि शायद से तब मम्मी को भी मैंने बताया नहीं था, पापा को भी बताया नहीं था कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ. देन उस टाइम पे भी फिर मेरे कोऑर्डिनेटर को बोलती थी सर झूठ बोलो ना कि मैं कॉलेज में थी. और उनको बता नहीं था तो वो सच ही बोल देते कि नहीं हमारे पास नहीं थी. तो फिर इन लोगों को शक होता था कि कहाँ घूमने जा रही है. बट इनको नहीं पता था कि मैं काम के लिए, इनको लगता था कि मैं ऐसे फालतू के घूमने जाती हूँ. पापा बोलते थे हमारा नाम डुबाएगी, ऐसे बन जाएगी, लड़की है, कैसे मन बढ़ा के रखा है तुमने. तो मेरी वजह से मम्मी पे बीतती थी वो सब. इससे नहीं पूछती थी कि आप कहाँ गए थे, लेकिन मैं बैग खोलती थी ना, मैं रोज इसका बैग चेक करती थी. एवरी जब सो जाती थी ढूंढती थी नहीं तो मैं ढूंढती थी कि ये कहाँ गई थी. पहले इसका रेलवे टिकट में चेक करते थे, तो उसके बाद इसका मैं हिल्स में चेक करती थी. बोली अच्छा तो तुम्हारा इनको पता था कि चेकिंग हो रही है, चुपके चुपके होती थी. हाँ तो जब मैं कुछ पाती थी जैसे टिकट हुआ हिल्स हुआ तो मैं पूछती थी अच्छा आप सही से बताओ कल कहाँ गए थे. तो कहीं नहीं गई थी. मैं यहाँ इवेंट को गई थी कॉलेज को. हाँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक टिकट आपके बैग में मिला मेरी फ्रेंड ने दिया बहुत कुछ. आप लोग मुझे बताइए ना, जब आपकी बेटी ने बोला कि मुझे मिस इंडिया बनना है, आप लोग का रिएक्शन क्या था? मतलब बहुत बड़ी ड्रीम है, उसको चेज़ करना भी एक जर्नी है. उसको मिस इंडिया बनना बहुत लंबी जर्नी होती है. तो कभी आपको ऐसा लगा कि अरे बहुत बड़ा ख्वाब देख लिया, मतलब ये कैसे उसको नहीं मिलेगा तो शायद मायूस हो जाएगी, ऐसा कभी लगा आप लोग को? सच बोलेगा वो लगा था आपको? नहीं, मेरा फोकस पढ़ाई पे था क्योंकि स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी. इनसे तो शेयर ही नहीं करती क्योंकि ये तो बोलते थे कि बताया फिर फाइनली, क्योंकि प्रिपरेशन 16 साल में चालू हो गई. कितना भी ये गिरे और उठे, कितने भी ठोकरे लगे, कभी अपने पापा से नहीं बोलती थी पापा हमने यहाँ गिरा हार गई. क्योंकि ये इतना कोसते थे ना, देखो हार गई तो जॉब करती, मैं इतना मेहनत करके रिक्शा चला के पढ़ा रहा हूँ. कहीं क्लियर नहीं होगी तो हमारे बच्चे सिर्फ हार के ही आते हैं. हमारे बच्चे पापा मेरे बोला ऐसा. हाँ मैं थोड़ा बाद में जब देखा है मानेगी नहीं, अब इसका सपना ही है, तो भी मैं रिक्शे में बिठा के स्कूल लेके जाता था. पठानवाड़ी हिल्स के लिए चलो बेटा उधर देखें, वो हिल्स सब बेचते हैं, सब लेके जाते थे. उधर नहीं मिलता, फिर नटराज मार्केट मलाड वेस्ट में उधर लेके जाते थे. तो सब लोकल बेचते हैं, सब आज पहनो कल टूट जाएगा. तो मैं बोलते थे देखना बेटा ये लोकल है. मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम. वो जब मुझे बुलाया तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि यार मिस इंडिया वाले बुला रहे हैं. आई वाज लाइक लेट्स सी अगर शॉर्ट लिस्ट हुई तो वो मुंबई के जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको एक बार बुलाते हैं देखने के लिए ऑन ग्राउंड ऑडिशन के लिए. मेकअप मेरा कुछ नहीं रहता था, मेरा छोटा सा फाउंडेशन, लिपस्टिक, जो मेरा ब्लश का काम करता था लिपस्टिक और मेरे आई शैडो. तो एक प्रोडक्ट से ब्लश भी हो गया, लिपस्टिक भी हो गया, आई शैडो भी हो गया. ओके. एंड आई स्टिल हैड दैट कॉन्फिडेंट. आई वाज वेरी हैप्पी कि फिर मैं गई वहाँ पे. मुझे मैम ने बोला कि ग्रूम योरसेल्फ, इट्स अ पर्सनालिटी कंपटीशन. देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ग्रूमिंग. मैं डिज़ाइनर्स क्या अपने पोर्टफोलियो लेके तक घूमी हूँ कि मुझे काम दो, क्योंकि आई न्यू कि इफ़ आई वांट टू गेट इनटू मिस इंडिया आई हैव टू ग्रूम माई सेल्फ. डजंट मीन दैट आई डिडंट हैव द क्या कहते हैं ग्रूमिंग क्लास के पैसे नहीं थे मेरे पास. Manya called me for the first time out of the blue because she found my number from somewhere, and she told me about her background, and my heart immediately went out to her because I could relate to her. I exactly know what that challenge is, you know, when how difficult it can be for somebody to start from rock bottom. But I also know that when somebody has a fire and believes in themselves, there is nothing that can stop you. I called Manya over to my house, and when she told me about her background, I felt that with the right kind of guidance and opportunity, she could really blossom and flourish. There was mostly everything that had to be worked upon, but she was very receptive and she was willing to work hard, and I think that's the first mantra of her success. She borrowed clothes from a lot of her friends so that she could look as beautiful as
the perception goes that, hey, you need to have a style quotient. She didn't let us feel even for a bit that, you know, she didn't have as much. I gave her my pair of lucky jeans that I had worn during my pageant in Miss India, and I gave it to her saying, listen, this is my lucky pair of jeans, you keep this, and if and when you win, you return it back to me, okay? टेक रिहर्सल हुआ तो मैंने वो स्टेज हुआ, मैंने कहा कि इसके लिए बहुत मेहनत की है यार, आज तो अपनी जान लगा देनी है। और फिर जब वॉक किया मैंने बोला जो भी हो जाए आज। आई कॉल पापा को, मैंने जब बोला कि टॉप 5 आएगा तो वीडियो कॉल करेंगे, आई स्टार्टेड क्राइंग। जो मेकअप करने वाली थी, मैं रो मत क्यों रो, मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ, मैं रोने लगी क्योंकि मुझे डर हो गया कि मेरे पास अगर नहीं हुआ तो मैं रोने लगी। मैं रोने में ही बोली कि पापा टेंशन मत लीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो पापा बेटा टेंशन मत ले, तू है टॉप 3 में, और अगर नहीं भी तो क्या हुआ, वापस से ट्राई करना अगले साल। मान्या मेरे साथ ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी थी पैजेंट के ट्रेनिंग के दौरान भी कि उसकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं है, तो वो आंसर में कभी ना कभी थोड़ा सा हिचकिचा जाती है जब फ्लो में इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। तो मेरी एडवाइस उसको यही थी कि मान्या, आप अपने मन की भाषा में बात करो, आप जिस लैंग्वेज में सोचते हो उस लैंग्वेज में बात करो, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदी हमारी प्रथम भाषा है और हमें बहुत गर्व से हिंदी का उपयोग करना चाहिए। Manya came out so strong. She had such strong beliefs and opinions. And when she spoke in Hindi, we were blown away. मेरे पिता ने और मेरी माँ ने बचपन से मुझे सिखाया है कि आप जितना खुद से कनेक्ट रहोगे, आपके अंदर उतना ही प्यार रहेगा, और जितना प्यार आपके पास रहेगा, आप उतना ही लोगों को वो प्यार बांट पाओगे। जब स्टेज पे जा रही थी तो बोली कि पापा अभी मैं स्टेज पे जा रही हूँ, आपको नंबर दे रही हूँ, अगर वो वीडियो कॉल करेंगे तो आप प्लीज़ नेट बंद मत करना, आप उठा लेना। तो मैं बाहर गई थी कुछ लेने, सब्जी वब्जी बनाने के लिए। तो मैं ऊपर आई तो बोल रहे थे कि बहनी गई है, स्टेज पे जा रही है, उसने नंबर लिया है, अगर वो आएगी फर्स्ट 5 में तो वो लोग कॉल करेंगे। तो फिर मैं सब्जी रख के मैं मंदिर गई। मैं भगवान से बोली कि भगवान आपने मुझे बहुत दुख दिया है, मैंने आपसे कुछ भी शेयर नहीं किया, हर दुख मैंने झेला अपना। अभी तो मीडिया सुन रही है कि मैं अपने बच्चों को घर से निकाली जब गई तो अपने बच्चों को लेकर के मैं ट्रक होता है ना, ट्रक के नीचे जो खाली जगह रहती है ज़मीन, कि दूर से कोई ना देखे कि मैं कहाँ बैठी हूँ। मैं इन लोगों को लेकर के उसके नीचे मैंने अपना दिन निकाला, रात निकाली, फिर सुबह हुई, तो समय ऐसे निकल गया। तो वही भगवान से बोली हमने इतना स्ट्रगल किया, आपसे कुछ हमने मांगा नहीं, लेकिन मेरी बेटी को ताज आप दे देंगे, आखिरी बार मैं मांग रही हूँ, माँ हूँ। तो लाइफ में मैं अब कुछ नहीं मांगूंगी इसके सिवा। अब भगवान से मैं प्रार्थना करके आई, अब मैं उस दिन खाना ही नहीं बनाई, भगवान से माँ गायत्री से मैं वही बोलती रही कि माँ गायत्री, आज मेरी बेटी का लाइफ का आज आखिरी दिन है, मुझे लाइफ में आपने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आज मेरी बेटी को ताज दे देना कि आज तक हमारी बेटी थी, अब दुनिया की बेटी बन जाए, बस यही हमारी खुशी है। अब फिर मेरी बेटी ने जब क्राउन पहना, हम लोग देखे नेट पे, तो हम लोग दोनों ने पकड़ के आपस में इतना मैं रोने लगी कि भगवान आज मेरी सब खुशियाँ आपने दे दिया मुझे। So when I got to know that Manya has won runners-up at the Miss India pageant, I was ecstatic because I felt कि हमारी मेहनत रंग लाई और एक बहुत स्वीट सी सिंपल सी लड़की मेरे पास आई थी और पार लग गई। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी प्रोटेजी जीत गई, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा जीत गई। So the evening Manya won, the next day the media went frenzy. They went crazy. In fact, every child, every household knew who Manya Singh is. They knew Manya Singh's name. They knew where she was an auto rickshaw wala's daughter. They knew her story. And I think the entire country, in fact, worldwide people related to her. There was this rickshaw parade that happened, an auto rickshaw parade that happened. And it was a sight to see how the community and how everybody came together just to celebrate her victory. एक तरफ सब मेरी तस्वीरें खींच रहे थे कि मैम लेफ़्ट राइट, मैम स्माइल कीजिए, मैम स्माइल कम कीजिए, मैम हंसिए, मैम अपना क्राउन दिखाइए। और दूसरी तरफ किसी को ये नहीं पता था कि मेरे सर से छत भी छीन गया है। जब मीडिया आने लगे मेरे घर पे, मुझे बोला गया कि नहीं हमारे यहाँ भीड़ नहीं चाहिए, तमाशे मत करो,
काफ़ी रोक टोक की कि आपने हमसे बिना पूछे मीडिया क्यों बुलाया। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने पूरा सामान निकाल के घर के बाहर रख दिया और ताले लगा दिए और कहे कि हमारे घर पे ऐसे नाटक नहीं चाहिए, आप यहाँ से खाली करके चले जाओ। पूरे दिन भटके हम, किसी की मदद नहीं मिली, पर एक चीज़ थी कि बहुत कोशिश की और ये घर मिल गया। भगवान ने एक दरवाज़ा खोल दिया हमारे लिए और अपने माँ बाप को सड़क से उठा के तुरंत मैंने यहाँ पे ला दिया। In fact, we as an organization wish that we knew what happened. I mean, it was just all of a sudden where we got to know a new address, where we had to reach out to Manya. And when we reached out to Manya, she said that he had to change my address. I needed to shift out of my home because there were so many media individuals who stormed her house. She was disturbing her neighbors, as they said. मिस इंडिया प्लेटफॉर्म ने मुझे एक ऐसा हौसला दिया कि मुझे कोई भी कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए मेरी लाइफ में, एक सर्वाइवर की तरह, एक वॉरियर की तरह बाहर निकलूंगी, विक्टिम नहीं बनूंगी। That woman did it all by herself. I wish we could have helped her, but she didn't let us feel the trouble that she was going through. और उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि आपको अंदर से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंदर से मजबूत हो तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए आपकी लाइफ में, आप सीधे खड़े होके वो मुश्किल को पार कर जाओगे। And that's what I call the strength of Manya Singh, the strength of a Miss India. और कहते हैं लाइफ में जब कोई बुरा चीज़ होता है तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो मैं कभी भी कोई चीज़ें अगर मुझे गलत लगी हैं या उसने मुझे कुछ सिखाया है तो मैं उसे इरेज नहीं करूँगी, मैं उसे प्रिजर्व करके रखूँगी, मैं उससे सीखूँगी कि मुझे क्या सीख मिली है और मैं आगे बढ़ूँगी। क्योंकि लाइफ है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इससे क्या सीखते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जर्नी वाज सो डिफिकल्ट क्योंकि जब तक इन लोग को, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसी हूँ कि मैं अपने सपनों को इनके ऊपर थोपूँ ना, क्योंकि इनके भी सपने थे कि मैं पढ़ के निकलूँ, क्योंकि इनको भी लोग बोलते थे कि अरे अपनी बेटी को लेके रहते हैं, कुछ बनी नहीं, घूमती रहती है। मैं गांव में भी पापा जो बोलते थे मिस इंडिया बनना है इसको, तो लोग मेरे पे हंसते थे कि अरे ये मिस इंडिया बनेगी, शक्ल देखिए अपनी। मुझे ऐसे लोग बोलते थे, मुझे कोई बोलते थे। मैंने सुना कि बहुत रूड होके कलर पे भी और हाइट पे भी बहुत कुछ बोला। इवन जब कैंपस में के ऑडिशन से रिजेक्ट होने के होता है, कॉन्फिडेंस कैसे इतना मेंटेन किया मान्या? मतलब आई एम स्टन्ड कि सब लोग चारों तरफ से ताने मार रहे हैं, हंस रहे हैं, पेरेंट्स को भी ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो उसके बीच में हाउ डिड यू हैव दैट एटीट्यूड कि मैं करके दिखाऊंगी और करके दिखाया? हाउ स्ट्रांग, हाउ डू यू गेट दैट स्ट्रेंथ? You know, this is something now I really wanted to do, and I wanted to see ki I was not expecting this year. Trust me, I was not I was not ready to apply this year because. Then how did you? अगर 16 साल की उम्र से you were I was preparing, तो ये साल कैसे you were like I'm gonna go this year? ऐसे कैसे decide? क्योंकि I didn't have the facility, Wi-Fi नहीं था मेरे घर में। मैंने अब जाके लगवाया कि क्योंकि जीतने के बाद वाईफाई आएगा? नहीं, हमारा 30 दिन का वर्चुअल था जिसमें हमें ऑनलाइन क्लास लेना था पेजेंट में। हाँ, तो मैं अलीसिया मैम के घर जाती थी, बट एक क्रिसमस का टाइम था जहाँ पे मेरे पैर में काफ़ी चोट लग गई थी एंड मम्मी गांव में थी क्योंकि पापा का भी एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे पास बहुत सारा सामान था। ट्रेन से यू फेल, हाँ, वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था? लाइक आई वाज गोइंग एंड मेरा शूट था 2 घंटे बाद, तो मुझे लगा फटाफट पहुंचे क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं टाइम पे पहुंचूं, कोई कंप्लेन ना आए कि मान्या पंक्चुअल नहीं है। आई डिडंट वांट कि मेरे किसी छोटे से गलती के वजह से वो मेरे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी छूट जाए जो बहुत सालों से मैं ढूंढ रही थी। तो आई वाज ऑलवेज लाइक बी ऑन टाइम चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं लेट होती तो मैं सोती नहीं थी रात को कि मैं लेट नहीं होंगी, मैं टाइम पे पहुंचूंगी। तो वो ट्रेन से मतलब उतरते में गिरी और दर्द बहुत हुआ। आई क्राइड अ लॉट, लाइक लिटरली आई क्राइड अ लॉट एंड फिर मैंने खुद को उठाया, मेरे पैर से चलने नहीं हो रहा था, लग रहा था कि टूट गया, इतना दर्द हो रहा था। बट आई वेंट उनके घर पे। तो चलती ट्रेन से यू जंप्ड ओवर? नो, ट्रेन बंद हुआ और काफी भीड़ थी एंड यू रैन? आई रैन एंड मैं गिर गई और मेरे घुटनों पे ही गिरी और ये पूरा सब छिल गया था उस टाइम पे। बट स्टिल मैं टाइम पे पहुंची एंड उसके बाद से मेरा ये पैर काम करना बंद कर चुका था। लाइक आई वाज वर्किंग एंड इट्स नॉट दैट कि कोई मेरे लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था, नहीं,
मुझे फटाक से टाइमर लगा के पीछे जाके शूट करना रहता था, मुझे फटाक से जाके अपनी एक्टिविटीज़ करनी रहती थी, वीडियो रिकॉर्ड करना रहता था, सब कुछ अपने आप ही करना रहता था, कपड़े पहनने रहते थे, बाल बनाने रहते थे, स्टाइल करना रहता था, मेकअप करना रहता था। और फिर देयर वाज अ टाइम जब मैम के घर में भी ज़रूर उनके फैमिली मेम्बर्स आ गए थे, उन्होंने भी अपनी मम्मी को बताया नहीं था कि उन्होंने मुझे अपने घर में रखा है। तो मैम ने अलीसिया मैम मैम वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर मॉडल्स ऑफ इंडिया, उन्होंने घर में शी मेड यू स्टे जस्ट टू ट्रेन यू? नो, उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी कि मैं अपना वर्चुअल सेशन अटेंड कर सकूं टाइम पे, उनका वाईफाई यूज़ करके। तो ये वाईफाई के लिए ओके, इतना सब कुछ ये भाग दौड़ वाईफाई के लिए हो रहा था बिकॉज़ यू डिड नॉट हैव वाईफाई। एंड आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू बस देन ट्रेन, एंड जिस दिन क्योंकि हमारे मुंबई में टाइमिंग थी जिस टाइम पे ये चल रहा, तो फिर बस से भी डायरेक्टली बस और फिर वहाँ से पैदल 2 किलोमीटर। तो जब वो पैर में चोट लगने के बाद क्रिसमस का टाइम था, उनके फैमिली मेम्बर्स आने वाले थे, उनको पता फैमिली गैदरिंग थी, तो मम्मी गांव में थी एंड आई हैड टू शिफ्ट ये स्पॉन्सर के सारे सामान, ये कम है उस टाइम पे, 4-5 बैग, ये सारे सामान उठा के नीचे लाना, और आई वॉज नॉट एबल टू वॉक। बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ शिफ्ट किया एंड आई क्राइड, क्योंकि मम्मी काश अपना घर होता तो मैं ये कर लेती। देन आई बोरोड मनी फ्रॉम माई फ्रेंड, देन मैंने वाईफाई लगाया एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे, तब तक मम्मी पापा आ गए, तब तक मैंने यहाँ पे पर्दा लगाया और फिर यहाँ पे मैं अपना सेशन लेती थी। तो इसी यहाँ पे बैठ के मिस इंडिया का पूरा जो पैजेंट का एक महीना होता है, अ पार्ट ऑफ इट हैज़ हैपेंड हियर इन दिस रूम। यस, अ पार्ट ऑफ इट हैपेंड हियर एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे सपोर्ट मिला और उन्होंने मुझे पर्सनलाइज एक मेंटल ट्रीटमेंट दी जो मुझे ज़रूरत थी। मुझे कहीं ना कहीं मेरे होप्स टूट जाते थे लोगों के रिएक्शंस देख के कि अरे शी डजंट लुक लाइक अ मिस इंडिया। ऐसे क्यों बोलते थे लोग? सोशल मीडिया इज़ लाइक नाउ द मोस्ट पावरफुल थिंग। क्या होती है बाहर की, अगर आप देखें, इन पैजेंट देयर इज़ नो डिफरेंशिएट, ट्रस्ट मी। आउट ऑफ पैजेंट इंडस्ट्री पीपल से दैट मिस इंडिया बहुत खूबसूरत होती हैं, गोरी होती है, लंबी होती है, पतली होती है, उनके नाक सर्टन वे में होते हैं, उनके जॉ सर्टन वे में होते हैं, उनका फीचर्स अलग होता है। बट मुझे ऐसा लगता है मिस इंडिया एक लड़की होती है, और मिस इंडिया एक लड़की अगर नहीं हुई और बहुत परी हुई तो मुझे नहीं लगता कि वो मिस इंडिया है। मिस इंडिया लोगों में से एक लड़की होनी चाहिए जो लोगों में घुल मिल जाए, उसे देख के ऐसा लगे कि भले वो क्राउन पहनी है लेकिन उसको कोई गले लगा के देखे तो बोले यार ये मेरी बहन है या मेरी बेटी है, वो मिस इंडिया होनी चाहिए। तो आई वांटेड टू बी दैट मिस इंडिया। मैं सारे पेरेंट्स से यही कहूँगा कि सभी अपने अपने लड़कियों को लड़कियों की तरह उसको प्यार दें और उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसको सपोर्ट करें, उसको छूट दें, यही मेरा सबसे प्रार्थना है। और मुझे चाहिए कि आने वाले भविष्य में किसी घर में बच्चा पैदा हो तो ये ना लोग पूछे कि लड़का है कि लड़की है, जी, और गोरी है कि काली। हमारे यूपी में है, सबसे पहले ये रीजन पूछते हैं कि हॉस्पिटल से कोई आता है या मिलने को आता है, क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की? तो बोला अरे यार लड़की हुई। अच्छा ठीक है लड़की हुई, कोई बात नहीं। अच्छा गोरी है कि काली? सांवली है कि गोरी? हाँ, तो बोलते हैं नहीं अरे यार काली हो गई, तब तो उसके माँ बाप के लिए बहुत डिफरेंस हो गया। आपको भी पूछा होगा ऐसे दुनिया के लिए ना? नहीं, तो हमें कोई फर्क नहीं, हमारी बेटी काली हो। देखो हम यही बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भी काले थे, भगवान रामचंद्र जी अयोध्या जी में विराजमान है वो भी काले थे, तो उन्होंने नाम जन्मों जन्मांतर सब लोग नाम ले रहे हैं ना। तो हमारी बेटी कोई नहीं कोई बोलता भी तो हम कहते क्या हुआ काली है तो हमारी है वो। पाउडर ऐसे लगा के फेस में मैं ऐसे घूमती थी भूत की तरह। तो आई हैव डन दैट, लाइक ऐसे बचपन में मैं पापा बोलते थे कि अरे वो गांव में वो लड़की पाउडर लगा के घूमती है, गोरी हो गई। तो मैं पाउडर ऐसे लगा के घूमती थी, मैं भी गोरी हो जाऊंगा। देन व्हेन आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ, लिटरली आई न्यू दैट मिस इंडिया हैज गिवन मी वन पावर टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। लोगों ने मुझे बोला कि यू आर डस्की, यू आर शॉर्ट, यू आर थिन। आई हैव गॉट अ कमेंट्स इन the power I've got from that comment that accept yourself. लोग जो बोलते हैं उसके अपोजिट करने का, and then you know what you want, you have worked for it. तुझे तेरी हिस्ट्री पता है, तुझे पता है कि तूने ट्रेन्स में ऐसे ट्रैवल किया, तुझे पता है तू दोपहर में चप्पलों के साथ ऐसे हाथ में चप्पल लेके हील्स लेके पसीने में बिना पानी बिना खाए चली है। इसका स्ट्रगल और मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की धन्यवाद।
उनकी सारी टीम को लाख लाख थैंक यू, धन्यवाद। We are very, very proud of you, Manya. I think we really needed a role model like her, and through Manya we've got that. All the best to you, and आप दोनों को भी. I hope that आगे जो दिन आए वो खुशहाली लाए. Thank you. आप लोग हंसते रहें, खुश रहें. मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने जो ऐसा कर दिया कि पूरे देश की कोई भी लड़की अब मान्या बन गई तो सब लोग आएंगे. मान्या की वजह से बहुत लड़कियां आएंगी. अब जो पहले जिनमें हिम्मत नहीं थी, जो हिम्मत नहीं थी कि हम इसमें नहीं जा सकते, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अब इसके वजह से अभी पार्टिसिपेट करने के लिए लाखों लड़कियां इसमें आएंगी. ये एक बहुत बड़ी बात है मिस इंडिया पैजेंट के बारे में कि ये लड़कियों, ये सिर्फ एक ब्यूटी पैजेंट नहीं है, ये बहुत लड़कियों को मौके देता है, प्लेटफॉर्म देता है, उनकी उनको इनकम देता है और उनकी तरक्की करता है. एंड एक तरीके से बहुत लड़कियों को इंस्पायर करके हमारा जो फीमेल पॉपुलेशन है उसको एम्पावर करता है. सो इट इज़ अ वेरी good pageant. It's a great platform. Yeah, and I believe I've changed the perception, not the meaning. Because एक interview में मुझे पूछा गया था कि don't you think you have changed the meaning of beauty pageant? So I believe that I've changed the perception कि now if I can, you can too. I feel that Miss India always did it. We have had so many beauty queens जिन्होंने अपनी तरीके से inspire किया है. Whether it's Priyanka or Aishwarya. उन्होंने भी फिर आगे चल के बहुत चैरिटी की, पर उनकी जर्नी मिस इंडिया में ही स्टार्ट हुई थी. सो मिस इंडिया हैज़ पेव्ड द वे फॉर सो मच. इट्स सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. सो अ बिग थैंक यू टू दैट पैजेंट, दैट thanks to Miss India organization, and yeah, I just wanted to say Manya Singh India. India, thank you. लोग कहते हैं ना आसान हो जाएगा रास्ता, मुझे नहीं लगता. यहाँ से आसान नहीं होगा और मुश्किल होगा, लेकिन एक हिम्मत है, एक कॉन्फिडेंस है और एक प्लेटफॉर्म है कि मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ और अपने पैरों पे एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में खड़ी हो सकती हूँ.